Hello everyone, my name is Dr. Tanvir Hassan in the Department of Computer Science and Engineering AIML from the ABS Engineering College, Ghaziabad as the designation of Assistant Professor. Today my topic is replacement algorithm and replacement algorithm within cache memory. So these all are the content of my today's topic. Number one is requirements of cache replacement algorithm and types of cache replacement algorithm. We have different type of cache replacement algorithm like first in first out, very common algorithm, and second one is the least recent unit algorithm. Third one is the direct mapping algorithm, and the fourth algorithm is MRU, that is called the most recent unit. And last one, we will take a question as a practice how we can solve that type of the problem. So now we will discuss about why we need to the requirement of cache replacement algorithm. Okay, so this is the requirement of cache replacement algorithm. So before starting the requirement, first of all, we have to discuss about why we need the cache. So as we know that we have the different type of the memory into the computer. For example, hard disk drive, also a memory, but this drive that can be used for storing the data permanently, and we have another memory that is called the random access memory, that is called the RAM, and we have another memory that is called the cache memory. And cache memory in terms of size, very small as compared to random access memory and the hard disk drive, and this is the CPU. So question is that whenever CPU have need some CPU demands some instruction that are stored into the cache memory, may be possible into the RAM and the hard disk drive. But question is that CPU, whenever CPU demand the instruction from the memory, but CPU those instructions that are not available into the cache memory may be possible. So CPU will take the data from the RAM and may be possible not available into the RAM. So CPU can access the data hard disk drive. But question is that whenever data or instruction are not present in the cache memory, so it will take it will take maximum amount of time as compared to the cache memory. So maybe possible some CPU cycle can be waste. So for removing that type of the disadvantages, we can use the cache memory. So we can say that cache memory is a very fastest memory. Reason behind that, cache memory is very nearest about to the सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, नाउ वी कैन से हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि सपोज दैट सीपीयू ने किसी इंस्ट्रक्शन या किसी डेटा की डिमांड करी और वो डेटा जो सीपीयू के सबसे नियरेस्ट मेमोरी दैट इज कॉल्ड द कैशे मेमोरी यहाँ अवेलेबल है. सो इट्स अ वेरी फास्टेस्ट मेमोरी. तो यहाँ से यहाँ तक डेटा को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू द रैम और द हार्ड डिस्क ड्राइव. बट क्वेश्चन इज दैट कि अगर जो वो डेटा इस कैशे मेमोरी में नहीं हुआ, वो कहाँ पर होगा, रैम में या हार्ड डिस्क ड्राइव में. तो जो डेटा आपका कैशे मेमोरी से ट्रेवल होने में बहुत कम टाइम लग रहा था, वही डेटा को एक्सेस करने में रैम से हार्ड डिस्क ड्राइव से वो ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू द कैशे मेमोरी. तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट है, हम कैशे मेमोरी को क्यों यूज करते हैं. तो हम कह सकते हैं बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी है. क्यों है? क्योंकि ये नियर अबाउट होती है सीपीयू के. ओके, अब क्वेश्चन is that whenever we have to use the cache memory, so as you know that cache memory का जो साइज है बहुत ही स्मॉल होता है, और मे बी पॉसिबल ये है हमारे यहाँ पर कैशे मेमोरी. और कैशे मेमोरी जो ब्रेक होगी वो होगी लाइंस में. तो जो लाइंस जो क्रिएट होंगी, तो अब वो जो कैशे मेमोरी हम यूज करेंगे लाइंस की फॉर्म में, तो इसका साइज बहुत ही स्मॉल है. और फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आई नोट यहाँ पर है, इंस्ट्रक्शन I1 है, इंस्ट्रक्शन I2 है, मे बी पॉसिबल इंस्ट्रक्शन I3 है, या वी कैन से इन टर्म्स ऑफ द ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3. We can write block 0, block 1, block 2 and the block 3.
सो जैसे कि अभी हमने बताया कि जो कैशे मेमोरी है उसका साइज बहुत ही लिमिटेड होता है, और लिमिटेड साइज में सारे ब्लॉक्स यहाँ पर ऑक्युपाइड हो गए। अब मे बी पॉसिबल कि कोई नया ब्लॉक्स की डिमांड हुई सीपीयू के थ्रू। अब क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक जो है ये कैशे मेमोरी में कहाँ एकोमोडेट होगा। दैट टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट, और ये रिप्लेसमेंट हम कहाँ पर कहें, विद इन द कैशे मेमोरी। सो हमारा टॉपिक यही है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है ये डिस्कस किया व्हाई वी नीड द कैशे मेमोरी विद इन द डिजिटल कंप्यूटर। बट some disadvantage of the cache memory is that cache memory have the very smallest size as compared to the RAM and the hard disk drive। और कुछ समय के बाद में वो अगर जो कैशे मेमोरी हमारी फुल हो जाती है, तो जो नए ब्लॉक्स की जो रिक्वायरमेंट होगी सीपीयू के थ्रू, तो ब्लॉक जो है कैशे मेमोरी में कहाँ अकोमोडेट होंगे। तो जो ऑलरेडी ब्लॉक कैशे मेमोरी में अकोमोडेट हैं, उन्हीं में से ही किसी ब्लॉक को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो इसी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर को हम यहाँ पर बोलते हैं कैशे मेमोरी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो ये विद इन कैशे मेमोरी हम यहाँ पर करेंगे। एक चीज हमें यहाँ पर और लर्न करनी है। तो कैशे मेमोरी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जब काम करेगी, तो ये सेट एसोसिएटिव कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पर काम करती है। और दूसरा होगा ये फुल्ली सेट एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव या फुल्ली सेट सेट एसोसिएटिव। तो हम यहाँ पर दो तरीके की मैपिंग पर यहाँ पर हम कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम काम करेंगे। तो मैं आपको एक आर्किटेक्चर यहाँ पर बताता चलूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे पास में डिफरेंट टाइप की मेमोरी होती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैशे का साइज यहाँ पर बहुत ही स्मॉल होता है, और वो इंस्ट्रक्शन या वो ब्लॉक जो सीपीयू डिमांड कर रहा है, बट सी रैम कैशे का साइज जो है बहुत स्मॉल है। तो कैसे हम जो है नए जो आपके ब्लॉक कैशे मेमोरी के अंदर में आएंगे, तो वो किस तरीके से आएंगे, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मैपिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, मैपिंग। तो एक अलग टॉपिक है हाउ वी कैन मैप द ब्लॉक रैंडम एक्सेस मेमोरी टू द कैशे मेमोरी। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर छोटा सा एक इसका इंट्रोडक्शन देता चलूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पर एक ये रैम है, और यहाँ पर हमारे पास में ये कैशे मेमोरी है। और इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एज अ नॉमेनक्लेचर, तो रैम जो है बाइफरकेट होगा ब्लॉक्स में। ओके। तो यहाँ पर ये ब्लॉक 0 होगा, ब्लॉक 1 होगा, ये ब्लॉक 2 होगा, ये ब्लॉक 3 होगा। ओके। तो यहाँ पर टोटल 4 ब्लॉक है। अब क्वेश्चन ये है, ब्लॉक के अंदर में मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्ड 0 है, ये वर्ड 1 है, ये वर्ड 2 है। एज यू नो दैट आजकल की जो मेमोरी बाइट एड्रेसेबल जो है होती है, और उसके साथ में यहाँ पर वर्ड एड्रेसेबल भी होते हैं। तो एक ब्लॉक के अंदर में हमारे यहाँ पर 3 वर्ड या 4 वर्ड यहाँ पर आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक की रिक्वायरमेंट हुई सीपीयू को, तो ये ब्लॉक हम यहाँ पर लाके रख लेंगे कैशे मेमोरी के अंदर में। ओके। तो ये जो ब्लॉक के अंदर में जितने वर्ड होंगे, ये सारे के सारे वर्ड यहाँ पर एकोमोडेट हो जाएंगे। इस बात से क्या ऑब्जर्वेशन होती है कि जो रैम के अंदर में जो ब्लॉक का साइज होगा, रैम के अंदर में जो ब्लॉक का साइज होगा, वो बराबर होगा कैशे मेमोरी में लाइन साइज के बराबर। ओके। ये चीज हमें यहाँ पर लर्न करनी है कि जो रैम के अंदर में जो हम ब्लॉक क्रिएट करेंगे, और ब्लॉक के अंदर में जो वर्ड्स होंगे, तो पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ से जाएगा और ये अकोमोडेट होगा कैशे मेमोरी के अंदर में। कैशे मेमोरी के लिए जो नॉमेनक्लेचर हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं लाइन। तो यानी कि जो लाइन का जो साइज होगा या जो ब्लॉक का साइज होगा, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इस बात से कह सकते हैं, अगर जो हमें ब्लॉक का साइज पता है तो हम लाइन का साइज यहाँ पर बता सकते हैं, या अगर जो हमें लाइन का साइज पता है तो हम यहाँ पर ब्लॉक का साइज बता सकते हैं। तो ये जो यहाँ से ब्लॉक को हमने यहाँ से उठा के जो कैशे मेमोरी के अंदर में डाला, क्यों, क्योंकि सीपीयू ने जिस इंस्ट्रक्शन की डिमांड करी थी, वो सबसे पहले कहाँ से एक्सेस करेगा, वो कैशे मेमोरी। और कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी इसीलिए तो है क्योंकि ये कैश माइक्रो प्रोसेसर के बिल्कुल नियरेस्ट मेमोरी है, इसलिए हम यहाँ पर कैशे मेमोरी को फास्टेस्ट मेमोरी बोलते हैं। बट क्वेश्चन इज दैट ये जो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द मैपिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, मैपिंग। कि ये जो हम यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं, तो ये मैपिंग 3 तरीके से होगी। एक होगी आपकी यहाँ पर डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है यहाँ पर फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, और एक थर्ड वन होता है जिसको हम बोलते हैं के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये इसके ऊपर में मैं एक अलग से वीडियो शूट करूंगा,
कि ये मैपिंग हम किस तरीके से करते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि अभी मान के चल रहे हैं कि ये जो ब्लॉक हैं ये ब्लॉक ऑलरेडी कैशे मेमोरी के अंदर में एकोमोडेट है। अब किसी वजह से इस ब्लॉक का भी तो साइज, ये जो लाइन है इन लाइन का साइज भी तो लिमिटेड है। अब जब ये लाइंस हमारी फिल हो गई, कैशे मेमोरी पूरी भर गई और सीपीयू ने नए ब्लॉक की डिमांड करी, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक नंबर 3 की रिक्वायरमेंट्स करी सीपीयू ने। अब सवाल ये है कि ये ब्लॉक जो है ये कैशे मेमोरी में कहाँ पर रखा जाएगा, और ऑलरेडी कैशे मेमोरी हमारी क्या है, फिल है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी ब्लॉक्स हैं विद इन द कैशे मेमोरी, तो वहां पर हमें उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो दैट टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट। और ये जो रिप्लेसमेंट हो रही है, ये रिप्लेसमेंट हो रही है विद इन द कैशे मेमोरी, राइट। अब इस बात को हम ऐसे सोच सकते हैं, एक्चुअली जब हम किसी भी कंप्यूटर का आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं तो आर्किटेक्चर एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कि आर्किटेक्चर फास्टेस्ट हो, बट उसके साथ में आर्किटेक्चर की जो कॉस्टिंग वो इतनी ज्यादा ना हो कि वो हम यूज ही ना कर पाए। तो हमें आर्किटेक्चर की कॉस्ट पर भी ध्यान देना है। और कैशे मेमोरी हमारी फिक्स मेमोरी है, लिमिटेड है। अब ऐसा नहीं है कि हम दूसरी कैशे मेमोरी लगाएं तो इससे कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो अब हमें करना क्या है कि जो हमारे पास में ऑलरेडी एक ही जो कैशे मेमोरी है, उसी कैशे मेमोरी को हमें बार बार क्या करना है, यूज करना है। तो जो ब्लॉक्स ऑलरेडी हैं उनको स्वैप आउट करना है, और जो दूसरे वेटिंग स्टेट में उसके उस अंदर में उसको क्या करना है, स्वैप इन करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बोलते हैं कैशे रिप्लेसमेंट, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इससे पहले लेकिन मेमोरी में डेटा आएगा कहाँ से, वो रैम के अंदर से आएगा, और रैम ऑलरेडी बाइफरकेट होता है ब्लॉक्स के अंदर में। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो मैपिंग होगी कैसे। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। एक यूज करेंगे हम डायरेक्ट मैपिंग, एक यूज करेंगे फुल्ली एसोसिएटिव, और तीसरा यूज करेंगे हम के वे सेट एसोसिएटिव। तो उसके ऊपर में हम एक अलग से वीडियो शूट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो ये कैशे मेमोरी है, अब कैशे मेमोरी ऑलरेडी फिल हो गई। यहाँ पर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएंगे या ब्लॉक्स आएंगे वो वेयर वी कैन अकोमोडेट विद इन द कैशे, क्वेश्चन इज दैट। तो इसी चीज को हम यहाँ पर बोलते हैं कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नाउ इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ द कैशे replacement algorithm, like we can say here first one is the first in first out algorithm, right। तो अब इस टाइप के एल्गोरिथम को हमें कैसे सॉल्व करना है कि अगर जो हमारे पास में जो गिवन कैशे और कैशे के अंदर में हमारा कोई डेटा है या कैशे खाली है, तो न्यू इंस्ट्रक्शन या न्यू ब्लॉक्स जो हमारे आएंगे हम उनको किस तरीके से अपनी कैशे मेमोरी में अकोमोडेट कराएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हाउ वी कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, और ये सब कंपटीशन के ही क्वेश्चंस हैं। तो वो देखेंगे हम इनको किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं। ब्लू ले लेते हैं ना, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आउट एल्गोरिथम हमें यूज करने। क्वेश्चन है कंसीडर द कैशे हैज 4 ब्लॉक। एक कैशे है, उसके अंदर में ऑलरेडी ये आपको ब्लॉक्स दिए गए हैं, और ब्लॉक्स कितने हैं यहाँ पर, 4। तो एक हमने यहाँ पर कैशे मेमोरी का आर्किटेक्चर डिजाइन करा, दैट इज कॉल्ड द कैशे मेमोरी। तो यहाँ पर डिवाइड इनटू द 4 ब्लॉक्स, कैशे 0, कैशे 1, and the cache 2 and the cache 3, right। So we have the 4 lines, we can say 4 blocks or line, और as you know that in previous slide कि जो लाइन का साइज है वो इक्वल होता है ब्लॉक के साइज के। रीजन बिहाइंड दैट, वो जो ब्लॉक्स आ रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, रैम के अंदर से। तो जो रैम के अंदर में जितने वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे अकोमोडेट होंगे विद इन अ लाइन। तो लाइन साइज इक्वल टू द ब्लॉक साइज, वी कैन से ब्लॉक्स और लाइंस क्वेश्चंस में कैसे भी गिवन दिया जा सकता है। अब देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फीफो। तो 5 क्या 5 यहाँ पर कैशे मेमोरी के अंदर में कोई यहाँ पर कोई ब्लॉक्स है, नो। तो यानी कि 5 हमने यहाँ पर डाला। तो इसी चीज को हम यहाँ पर बोलते हैं, दैट्स पॉइंट इज कॉल्ड द स्टार वाले से हम इसको बोलते हैं मिस पेनल्टी। क्या बोलेंगे इसको, मिस पेनल्टी या मिस केस।
ओके, नाउ अब यहाँ पर जो है डिमांड होगी 12 ब्लॉक्स की। तो ब्लॉक नंबर 12, तो वो वहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से ये आ जाएगा यहाँ पर 12। तो ये भी कैसा होगा हमारा, मिस केस। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ 13, ये भी कैसा है हमारा, मिस केस। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ 17, और ये भी क्या है हमारा, मिस केस। अब देखिए यहाँ पर जो कैशे मेमोरी थी, वो कैशे मेमोरी का साइज कितना है, कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 ब्लॉक में। अब क्वेश्चन ये है कि इसी कैशे मेमोरी को हमें यूज करना है, और सीपीयू ने यहाँ पर डिमांड रख दी है इंस्ट्रक्शन 4 की। बट क्वेश्चन इज दैट नाउ दिस 4 इंस्ट्रक्शन हाउ कैन बी अकोमोडेट विद इन द मेमोरी। और अगर जो 4 इंस्ट्रक्शन यहाँ पर अकोमोडेट होगा, तो ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्शन है 5, 12, 13, 13, 17 में से कौन सा ब्लॉक्स हमारा यहाँ पर रिप्लेस होगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर जब हम 4 को एकोमोडेट कराएंगे, तो 4 क्या इस कैशे मेमोरी के अंदर में है, 9। तो यानी कि ये भी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, ये भी हमारा यहाँ पर मिस केस हो गया। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट गया 5 रिप्लेस विद द हेल्प ऑफ द 4। ओके, नाउ 4 इज अवेलेबल विद इन द कैशे मेमोरी। वेरी गुड। तो ये सर्कल से हम दिखा देते हैं कि ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, हिट केस। और 13 अगेन यहाँ पर क्या होगा हमारा, हिट केस। और 17 अगेन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, हिट केस। तो सर्कल से हमने यहाँ पर दिखाएंगे हिट केस। नाउ डिमांड द 2, एंड 2 is replaced by 4, 12, 13, 17। तो 4 तो हो गया, तो 2 is replaced by the 12। तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, दैट मीन्स दिस इज द मिस केस। एंड नाउ अगेन 13, 13 is the hit case। okay, 13 is the hit case. Now demand by the CPU instruction 19, how we can accommodate in this cache memory 4 2, so 13 replaced by the 19, so 19 is the miss case. Now 13 is replaced by the 17, and 13 is the miss case. Now demand the 43, and 43 according to first come first serve replaced by the 4. This is the miss case. Now demand the 61, 61 replaced by the 2. This is again the miss case, and 19 is the hit case. So what is the hit ratio? What is the hit ratio? So हिट रेशियो अगर जो हम यहाँ पर निकाले हिट रेशियो, तो 1 2 3 4 5, 5 इज द हिट रेशियो। और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 5 by 15 multiply 100। 5 by 15 is the hit ratio, and 5 by 15 multiply 100. So we can say hit ratio in the percentage 33.33%. So we can solve that of the question, that type of the question in this manner. So in question, although वैसे पूछा नहीं है इसमें मिस रेशियो। और अगर जो यहाँ पर अगर जो हमें मिस रेशियो निकालना है, तो यानी कि मिस कितने हिट हमारे यहाँ पर 5 है, और मिस कितने हो गए फिर हमारे 10 by 15। और ये रेशियो हमारा क्या हो गया, मिस रेशियो, जिसको हम बोलते हैं एम। ओके, और अगर जो हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो वी कैन मल्टीप्लाई 100। और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आई थिंक 66.66% यहाँ पर इसका क्या आएगा, ये मिस रेशियो आएगा। सो वी कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम जो है, ये जो रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है अकॉर्डिंग टू फीफो, हमने इसको विद इन द कैशे मेमोरी इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। नाउ अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर लीस्ट रिसेंट यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फीफो एंड एलआरयू से बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी होती है पूछने की। तो यहाँ पर भी हम सेम स्ट्रिंग लेके इस क्वेश्चंस को एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम इस चीज को। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार कर लेता हूँ। ओके, so how we can solve the type of the least recent unit और विद इन द कैशे मेमोरी। देखिए हमारा क्वेश्चन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास में जो डिफरेंट मेमोरी है, और कैशे मेमोरी एज कम्पेयर टू द हार्ड डिस्क और रैम बड़ी फास्ट होती है, बट कैशे का साइज बहुत लिमिटेड है। और क्वेश्चन ये एक टाइम के बाद में कैशे अगर जो हमारी फिल हो गई, और नए जो इंस्ट्रक्शन है डिमांड बाय द सीपीयू,
Question is that how we can accommodate that instruction or block within the cache memory. तो वो जो कैशे मेमोरी के अंदर में हम वहाँ पर उन ब्लॉक्स को अकोमोडेट करेंगे, तो जो ऑलरेडी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन या ब्लॉक्स रखे हो, हाउ वी कैन रिप्लेस देम, क्वेश्चन इज दैट। तो वही चीज हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं। तो उसके लिए डिफरेंट एल्गोरिथम है। तो एक हमने अभी डिस्कस किया फीफो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लीस्ट रिसेंट यूनिट, हाउ वी कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो how we can solve the type of the question। ओके, पेन का कलर हम चेंज कर लें, यहाँ पर रेड ले लें इसको। ओके, नाउ अगेन इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर सेम रेफरेंस स्ट्रिंग लिए और एलआरयू हमें यहाँ पर यूज करना है। तो हिट रेशियो निकालना है और ब्लॉक्स यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 4 ब्लॉक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लें, ये कैशे मेमोरी है, ये कैशे मेमोरी का हमने आर्किटेक्चर यहाँ पर डिजाइन किया। तो ये हमने ब्लॉक डिजाइन आर्किटेक्ट किए, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3। नाउ यहाँ पर अब हमें जो टेक्निक या एल्गोरिथम लगानी है, लीस्ट रिसेंट यूनिट। नाउ 5 इज अवेलेबल इन द कैशे मेमोरी, नो, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया, मिस केस। नाउ डिमांड बाय द सीपीयू इंस्ट्रक्शन 12, तो 12 is not available here, so this is the miss case। Now 13 is demanded by here, we can write not available in the cache memory, so this is also the miss ratio। Now demand by the cache memory, in the cache memory by the CPU 17, not available in cache memory, so this is the miss case। Now demand by the CPU is 4, so 4 is available in cache memory, no, so also this is the मिस केस। बट क्वेश्चन इज दैट जब ये 4 कैशे मेमोरी के अंदर में अकोमोडेट होगा तो कौन सा ब्लॉक यहाँ पर क्या है, रिप्लेस होगा। अब क्वेश्चन ये है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा समझना, लीस्ट रिसेंट यूनिट का मतलब क्या है, हमें पास्ट में देखना है। पास्ट में जो नंबर, जो इंस्ट्रक्शन चला गया, तो सीपीयू के थ्रू अब हम ये सोच सकते हैं कि उसकी डिमांड जल्दी नहीं होगी। तो यानी कि ये कौन, यानी कि 5, 12, 13, 17 वो इंस्ट्रक्शन देखने जो कैशे मेमोरी में है, 5, 12, 13, 17, तो जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर है। तो हमने देखा 5 सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर है, तो यानी कि 5 रिप्लेस बाय द 4, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, मिस केस। नाउ 4 एंड 4 इज द हिट केस, already available in cache memory, and 13 is the hit case, already available in the cache memory, and 17 is the hit case, already available in the cache memory, right? Now demand by the CPU next block is 2, but question is that 2 is available in cache memory, not, so this is the miss case। but question is that how we can accommodate within the CP in the cache memory, and this instruction is accommodated in the cache memory, which instruction should be replaced with the help of 2। so again वो instruction जो सबसे longest distance पर हो, और हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है 2 को कौन से इंस्ट्रक्शन, 4, 12, 13, 17, तो हमने यहाँ पर देखा 12 सबसे यहाँ पर क्या है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर है, तो 12 को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से, so 2 also the miss case। again 13 is the hit case, and demand the 19 not available in the cache memory, and this is also the miss case। but question is that 19 जब cache memory में आएगा, वो कौन सा ब्लॉक है जो स्वैप आउट होगा। तो 4 to 13, 17, तो 13 सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर है, 13 रिप्लेस बाय द 19, and now again need the 13, and 13 also the miss case, and 13 replace by 4 to 19, 17, तो यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 17 जो है सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर है, 17 replaced by the 13। now divided by the CPU 43 not available in the cache memory, so also we can say this is the miss case। but question is that 14 replaced by the 4, 12, 19, 13, तो ये मुझे लगता है 4 to 19, 13, तो रिप्लेस बाय द 13, एंड 13 क्योंकि 13 सबसे पास्ट में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर, 13 रिप्लेस बाय द 43, also the miss case। now demand by the CPU next instruction is 61, or 61 replaced by all these instruction 4 to 19, 13, but which one, so जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर है, तो आई थिंक मुझे लगता है 4 to 19, 13,
तो 4 2 19 and 43, तो 4 2 4 4 4 4, तो यानी कि 4 यहाँ पर 4 ये रिप्लेस हियर 61 and demand the 19 and 19 is the hit case. Okay, so what is the hit ratio? तो अगर जो हम यहाँ पर हिट रेशियो की बात करें तो टोटल इंस्ट्रक्शन या टोटल ब्लॉक हमारे पास में 15, 1 2 3 4 5 अगेन, सो दिस इज द हिट रेशियो। और अगर जो हमें परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 32.33%। एंड इन द मिस रेशियो, तो यानी कि मिस रेशो 10/15, दिस इज द मिस रेशो। और अगर जो परसेंटेज यहाँ पर हमें निकालनी है तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे 66.66%। तो वी कैन सॉल्व द रेशियो और परसेंटेज की कितने ब्लॉक्स यहाँ पर हिट हुए हैं और कितने ब्लॉक्स यहाँ पर मिस हुए हैं विद इन द कैशे मेमोरी, और परसेंटेज में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एलआरयू की हेल्प से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा। नाउ नेक्स्ट इज द डायरेक्ट मैपिंग। तो अब ये भी एक एल्गोरिथम है जहाँ पर हम विद इन अ कैशे मेमोरी हम डेटा को सेव कराएंगे। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डायरेक्ट मैपिंग में पेनल्टी सबसे ज्यादा, अगर जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे अभी, तो हम अभी खुद देखेंगे इस चीज को कि डायरेक्ट मैपिंग में ज्यादा मिस पेनल्टी है एज कंपेयर टू द लीस्ट रिसेंट यूनिट एंड द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इसी टाइप से हैं सारे। तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है अभी, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें यहाँ पर थ्रू दिस first in first out LRU and the direct mapping. How we can solve the type of the problem? यहाँ पर हम इसको जरा रफ कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पेन का जरा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी डायरेक्ट मैपिंग को समझने में। यहाँ पर हम इसको पिंक कलर ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर सेम चीज हमें डायरेक्ट मैपिंग से करनी है। तो हमने आपको बताया था कि जो ब्लॉक यहाँ पर मैप करेंगे कैशे मेमोरी में, तो तीन तरीके से होगा। एक होगा डायरेक्ट मैपिंग, एक होगा सेट एसोसिएटिव, और एक होगा आपका के सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो डायरेक्ट मैपिंग में बाय डिफॉल्ट पेनल्टी सबसे ज्यादा होगी, तो देख लेते हैं। बट वी कैन ऑल्सो यूज फॉर we can say the replacement within the cache, but penalty is very high. How we can solve? So we have a cache memory design architecture for the cache memory. So this is a cache memory, and that can be divided into the four block: block 0, block 1, block 2, and the block 3. So with the help of the direct mapping, तो जो डायरेक्ट मैपिंग होगा, तो डायरेक्ट मैपिंग एल्गोरिथम के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं के मॉड एन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं, यहाँ पर 4। ओके, और फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर जो है, हमें यहाँ पर सबसे पहले जो स्ट्रिंग यहाँ पर लेके आना है, वो हमें यहाँ पर लेके आना है 5 को, राइट। तो 5 यहाँ पर कैसे हम लेके आएंगे, तो यानी कि इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 5 मॉड 4। तो यानी कि जितने ब्लॉक होंगे, तो यानी कि रिमाइंडर हमारे यहाँ पर जो हमारे पास में जो बचेगा वो बचेगा 1। तो यानी कि 1 पोजीशन पर वी कैन एकोमोडेट द डेटा 5।
ओके, इन केस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, राइट। नाउ वी नीड 12। तो ये तो बात हो गई हमारी 5 की। अब अगर जो हमें 12 को लेकर आना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, के मॉड 12। ओके, तो यानी कि रिमाइंडर शुड बी 0, और 0 पर हम यहाँ पर रख देंगे इसको 12। तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, मिस केस हो गया 5 वाला भी, और ये भी हमारा क्या हो गया, मिस केस हो गया, राइट। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट ब्लॉक को कॉल करेंगे, कॉल बाय द सीपीयू, नॉट बाय मी, कॉल बाय द सीपीयू। तो 4 3 जा 12 यानी कि 1। अब यहाँ पर 1 पर ऑलरेडी 5 है, तो यानी कि 13, तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, 5 के रिप्लेसमेंट पर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये भी केस हो गया। अब यहाँ पर देन 17 मॉड 4, तो 4 4 जा 16 1, तो यानी कि ये भी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17, यानी कि ये भी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, मिस केस। अब ये हो गया 4 मॉड 4, दैट इज द 0, और यानी कि 0 पर हमारा क्या रखा हुआ है, 12। तो 12 रिप्लेस बाय द 4, और ये भी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, मिस केस हो गया। नाउ हम अब सीपीयू डिमांड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 12। तो 12 4 4 3 जा 12, तो 0, और 0 पर हमारा क्या रखा है, 4, और 4 को रिप्लेस किससे कर देंगे हम, 12 से, और ये भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, मिसकेस हो गया। अब नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज 13 डिवीजन 4। तो 4 3 जा 12 1, और 1 पर ऑलरेडी हमारा 17 रखा हुआ है, रिप्लेस बाय द 13, और ये भी हमारा क्या हो गया, मिसकेस हो गया। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज 17 mod 4 4 4 जा 16 1 1 पर, यानी कि अगेन replaced by the 17. This is also the miss case. Now 2 and 2 division 4, remainder is also 2 and 2, यानी कि this is also the miss case 2 here, and now is 13 13 mod 4, 13 mod 4 is equals to 4 3 जा 12 1, और 1 पर हमारा है 17 रिप्लेस बाय द 13। तो अगेन दिस इज द मिस केस, एंड वी कैन सॉल्व द 19 19 डिवीजन 4, 4 4 जा 16, यानी कि 3, और 3 पर भी हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, ये 19, और नाउ 13 13 mod 4 1 और 1। देखिए ये हमारा यहाँ पर पहला एक हिट केस मिला, यानी कि एक ही इंस्ट्रक्शन है जो ब्लॉक में अवेलेबल है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो मिस पेनल्टी होगी वो डायरेक्ट मैपिंग। एक्चुअली इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है, ये ब्लॉक को फिक्स कर लेता है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब हम मैपिंग करेंगे तो डायरेक्ट मैपिंग में वो लाइंस को फिक्स कर देगा। तो इसी का रीजन है ये कि यहाँ पर मिस पेनल्टी सबसे ज्यादा होने वाली है बाय प्रूफ। ओके, so now we can solve the 43 mod 4. So we can say 3 and 3 have 19, and 19 replaced by the 43, also the miss case. And now next one is the 61 mod 4, or we can say 4 1 is 4 2, or 4 5 is 20, remainder is 1, and 1 have the 13. So again 61 is the miss case, and 13 replaced by the 61, and now again is the 19. 19 is not available into the cache memory 4 4 4 is the 16 3, and 3 have the 19, and this is replaced by the 19. So also this is the miss case. So we can say अगर जो हम यहाँ पर क्या निकालें कि परसेंटेज में हिट रेशियो अगर हम यहाँ पर निकालें, तो जो हिट रेशियो होगा, तो यानी कि 1/15 और मल्टीप्लाई 100, तो हिट रेशियो तो ये निकल गया
बट अगर जो इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 6.66% हमारा यहाँ पर ही आने वाला है। और अगर जो हम यहाँ पर इसके मिस रेशियो की बात करें तो यानी कि 14/15 और मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर जो है 26.66 वी कैन कैलकुलेट हियर कि क्या हमारा ये आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। तो ये हम कर लेते हैं डिवीजन 15, तो 6.66 एग्जैक्ट राइट, और 1400 डिवीजन 15. ओके, so I think miss ratio we have to calculate, so we can find the miss ratio like that. Okay, we can calculate the miss ratio 14 upon. So I think calculation is due to some reason wrong. So we can calculate this. So that's all about direct mapping. So direct mapping has the maximum miss ratio as compared to the least recent unit and the first in first out. तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें ऐसे यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी। अब इसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन और है इसमें कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो है सेट एसोसिएटिव मैपिंग इन सब चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम उस क्वेश्चंस को। यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओके, okay. Now next algorithm is most recent unit. So we have discussed already FIFO, LRU or direct mapping, and how we can solve the most recent unit. How we can solve the most recent MRU, most recent unit. So question is that consider the cache as for the following references 5, 12, 13, 17, 4, 12, 13, and what is the hit ratio? Again asking about the hit ratio using the MRU. Okay, so how we can solve that type of the problem? Again, we have to design the architecture, how we can solve that type of the problem. So we have the 4 blocks. So again, we have designed architecture that we have the 4 block. Okay, so 0, 1, 2, 3, right? So it's demand by the CPU, demand the CPU 5. So 5 is not available into the cache memory. So this is the miss ratio. Again, demand by the CPU, that is the 12. 12 not available in the cache memory. This is the miss ratio. Demand by the CPU 13 not available. This is the miss. And demand by the CPU 17. This is the miss ratio, right? And now we can say demand by the CPU is the 4, but question is that which one we can replace, right? In case of MRU, मोस्ट रिसेंट यूनिट क्या कहता है, जो बिल्कुल अभी हमारा एग्जीक्यूट होके गया है, हमें उसी से ही रिप्लेस करना है। तो जस्ट बिल्कुल अभी हमारा एग्जीक्यूट कौन होके गया है, 17। तो 17 रिप्लेस होगा आपका किससे, 4 से। तो एलआरयू और एमआरयू में दोनों ही पास्ट पर काम करेंगे, बट एलआरयू लॉन्गेस्ट डिस्टेंस और एमआरयू जो होगा जो रिसेंट में अभी एग्जीक्यूट होके गया है ब्लॉक, उसी को हमें रिप्लेस करना है। सो अगेन दिस इज द मिस रेशियो। नाउ डिमांड बाय द सीपीयू 12 hit ratio, 13 again hit ratio. Now demand the CPU 17, और अभी हमारा कौन सा एग्जीक्यूट हो गया रिसेंट में, 17 से पहले 13। तो 13 रिप्लेस बाय द 17, और 17 is the miss ratio, and 17 is replaced by the 2, and 2 is the miss, and divided by the 13, 13 again the miss, 13 is replaced by the 2, and now again is required the 19. So 19 and 19, अब 19 कैशे मेमोरी में आएगा। तो जस्ट बिल्कुल अभी जो एग्जीक्यूट होके गया है वो कौन सा होके गया है हमारा, 13। 13 रिप्लेस बाय द
19, और ये भी हमारा मिस हुआ, और 19 के बाद में यहाँ पर आया 13, 13 भी हमारा मिस हुआ, और इसके बाद में हमारा यहाँ पर आया 43, 43 भी हमारा यहाँ पर क्या हुआ, मिस हुआ, और इसके बाद में हमारा यहाँ पर आया 61, और 61 भी मिस हुआ, और नाउ डिमांड द मोस्ट रिसेंट यूनिट 61। तो यहाँ पर जो है वी कैन से मोस्ट रिसेंट यूनिट, और 61 भी हमारा यहाँ पर जो है ये हुआ 19, राइट। तो ये भी हमारा मिस रेशियो हुआ। और अगर जो हमें यहाँ पर वी हैव टू कैलकुलेट द हिट रेशियो, तो हिट रेशियो हमारे यहाँ पर होगा 2/15, ये हमारा हुआ, और ये हमारा हुआ यहाँ पर मिस रेशियो। ओके, और अगर जो हम यहाँ पर बात करें मिस रेशियो की, तो हमारा यहाँ पर मिस रेशियो जो होगा ये होगा 13/15, ये हमारा होगा मिस रेशियो। तो इस तरीके से हमें जो है मोस्ट रिसेंट यूनिट, तो एमआरयू और एलआरयू हमें याद रखना है कि एलआरयू जो है दोनों ही पास्ट पर काम करेंगे, बट एलआरयू हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे पहले एमआरयू जो हमारा रिसेंट में भी एग्जीक्यूट हो गया, हमें उस वाले इंस्ट्रक्शन को स्वैप कराना है, राइट। तो ये है क्वेश्चंस अबाउट हाउ वी कैन रिप्लेस द ब्लॉक्स विद इन द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ द मोस्ट रिसेंट यूनिट। These are the references: Morris Mano or Geeks for Geeks and Microcontroller books. And I have taken all the data from these two sites and from these two books. Thank you very much.